Hello, I am Ashirwad, and today we will study about management accounting. Management accounting is the part of accounting, and it is most important part of accounting because with the help of management, we can do everything with effectively and efficiently, right? And we know that there are many functions of managements like planning, controlling, organizing, staffing, directing, है ना? तो from the planning and at the end of controlling, management has been done. But in accounting, there are two most important components of management. Is first one is planning and second is controlling. If we talk about controlling, because now we are study about controlling. Controlling means what, right? If we compare controlling to other function like planning, like we can say that planning is for future use, for future purpose. We can say that planning is futuristic, right? But if we talk about controlling is the part of management, an important part of management. In this function, we control, we correct all those activities whatever have been done, right? ओके तो हम यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग and this is the part of controlling, right? But controlling is the component of management. Controlling is the main important function of management, and responsibility accounting and reporting is a part of controlling in management accounting, right? तो हम फिलहाल हम बात कर रहे हैं responsibility accounting and reporting. तो सबसे पहले बात आती है कि responsibility accounting क्या होती है? What do you mean by responsibility accounting? We know that meaning of responsibility, but what is the meaning of responsibility accounting? In terms of accounting, what is the meaning, nature, functions and need of responsibility accounting, right? So now we are studying about responsibility accounting and we will continue this topic with the help of their components like nature, functions, need, right? चलिए. So finally cost accounting is required to serve three major objectives. अब आप कहेंगे कि हम we are talking about management and why we are studying about costing, right? But we know that accounting bifurcation in three categories. First one is financial, second is cost, and last one is management. But we know that management is applicable for universal, right? So that we can conclude management is needed in costing, in financial and everywhere, right? So that here we are using controlling for cost controlling, for cost minimization. Controlling function is useful is here for control all those activities which is related to accounting system, financial party, right? चलिए. तो cost accounting means what? Cost accounting is required to serve three major activities. हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो हम जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं फॉर किसके लिए कर रहे हैं? कॉस्टिंग के लिए, राइट? फॉर कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट? इसके मेन तीन कैटेगरी, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहले हमारा टारगेट होता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, राइट? फिर हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. देन फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल की, राइट? तो कॉस्टिंग के लिए हम लोग तीन मेन कंपोनेंट्स को टारगेट करते हैं. आप कंट्रोल करेंगे वेस्टेज को,
आप कंट्रोल करेंगे उन रॉन्ग थिंग्स को, उन रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम को जो आपको करेक्शन करना है यहाँ पर, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड, वैल्यूएशन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना होता है? बिकॉज एग्जैक्टली कितने स्टॉक की नीड है, कितना होना चाहिए, राइट? बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कई बार क्या हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ जाता है। तो हमें इसलिए पहले कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना होता है, उसके साथ ही साथ हमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना होता है। एंड लास्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। अब हम यहाँ मेन टारगेट करेंगे इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स को, राइट? ठीक है। The first two objectives are well served by costing system of most companies because of their orientation to product costing. Costing system most of the time fail to meet the objective of cost control. तो हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमें मेन दो चीज़ों को करना होता है। ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट हम लोग कंपेयर करते हैं पास्ट डेटा से, हम कंपेयर करते हैं इंटर फॉर्म से, राइट, सिमिलर फॉर्म से, राइट, है ना? तो इससे हम लोग कॉस्ट डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। वैल्यूएशन इन्वेंट्री भी हो जाती है पास कंपैरिजन से, बट कॉस्ट कंट्रोल जो होता है हमारा, वो हमारा रह जाता है। तो व्हेन दिस वे फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अब हम कॉस्टिंग की बात है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम फेल टू मीट द ऑब्जेक्टिव और सर्विस, राइट? तो मेन बात क्या जाके आती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड बाय कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट फंक्शन, सर्विस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग करेंगे। दिस वे ऑफ accumulating cost is not at all helpful in controlling cost. When then it would be easy for a company to control cost effectively when it evolves a system of placing responsibility of incurrence of cost on those who have authority to influence them. Such a system which identifies cost with responsible person is called responsibility accounting, right? तो अभी हम लोगों ने बात करी पर्टिकुलर कॉस्ट डिटर्मिनेशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट कंट्रोल। तो ये जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है ना, राइट, ये जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है ना, ये पूरे की पूरे उस होल मैनेजमेंट को, उस पूरे होल मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस सिस्टम को ही जो हम लोग मैनेज करते हैं, सिस्टम को हम जो एनालाइज करते हैं, इस सिस्टम को हम लोग जो रन करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पढ़ेंगे एग्जैक्टली। अब आपने समझा बेसिकली कि हम कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किस वर्ड एंड देन फॉर विच पर्पस वी आर यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब बेसिक हमें समझना है नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। A number of factors have contributed to the development and growing use of responsibility accounting. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमें मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे अकाउंटिंग के जो फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की कैटेगरी में आते हैं। The rapid pace of technology and marketing innovations, diversification, merger strategies, high gestation period, increased competition, and a host of other variable complicated business operation in the past. हम जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसा कि मैं वापस रिपीट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल की बात करें, पार्ट की बात करें, ये कंटिन्यूसली क्या होता है, रन कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, रैपिडली चेंज होता रहता है। मार्केटिंग इनोवेशंस की बात करूं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, कोई भी कंपनी एक अपनी प्रोडक्ट लाइन से, एक मेन लाइन से क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती है, राइट? तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज लेके आती हैं। किसी बिजनेस में गेस्टेशन पीरियड कई बार बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेनली अगर हम बात करें बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो गेस्टेशन पीरियड काफ़ी हाई ही मिलेगा आपको। कंपटीशन बढ़ते जा रही है,
राइट, ये सारे के सारे बिजनेस के ऑपरेशंस जितने भी है ये पास्ट में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जब हम करेंटली हम कंट्रोलिंग कब करते हैं? कंट्रोलिंग हम जब करते हैं जब हमारा वर्क हो चुका होता है या हो रहा होता है, राइट। तो सारी की सारी एक्टिविटीज कंट्रोलिंग के पहले कहा जाती है पास्ट में, और ये पास्ट एक्टिविटीज को ही कंट्रोल करना हमारी क्या कहलाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस accentuated a need for decentralization। अब कभी कभी क्या हो जाता है बिजनेस ऑपरेशन में हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है? इसका नेचर हम पढ़ेंगे। कभी कभी नीड किसकी होती है? नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन की हमें नीड होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? कि डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है, इनटू यूनिट्स, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, राइट। यानी वर्किंग सिस्टम जो होता है वो टॉप टू बॉटम नहीं होता है, वो वर्किंग सिस्टम हो जाता है इस तरह से, राइट, कि अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग लेवल पे इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने वर्क को करने के लिए, राइट। However, decentralization could be effective if there existed a sound system of control, right? अब यहाँ पे जाके आप वर्क करते हैं, बट ये चीज़ें यूजफुल कब होगी? यह चीज़ें बेटर कब होगी? या ये चीज़ें क्लोज टू परफेक्शन यानी क्लोज टू परफेक्ट कब होगी, राइट। ये सारी की सारी जब होगी जब हमारा कंट्रोलिंग कैसा होगा? सिस्टमैटिक होगा, राइट। तो मेन बात कहा जाके आती है कि नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या समझाती है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हम जब एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें नीड होती है कंट्रोलिंग की। सारी की सारी पास्ट एक्टिविटीज़ जो हो चुकी है और जो रन हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे जो हम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्दर, मैनेजमेंट रियलाइज द ऑब्वियस रोल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट मिनिमम कॉस्ट। हमें जो प्लानिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट को फुलफिल करना होता है, और जहाँ किसी भी लेवल पे जाकर जब फुलफिल नहीं होती है तो हमें नीड होती है कंट्रोलिंग की, right? It was also felt that tools available to perform planning and control functions that time were not efficient। अब कभी कभी क्या होता है कि वर्क एफिशिएंट नहीं होता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और जहाँ टाइम आ जाता है मतलब वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब हमारा मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है और क्लोज टू परफेक्ट नहीं है, राइट। चलिए, एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी ओरिएंटेड टू इट्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, राइट। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इवॉल्व, और इन्हीं की चीज़ों की नीड के कारण क्या इवॉल्व होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। तो हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमें बनाना होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना होगी कि पर्टिकुलर कौन कौन से डिपार्टमेंट में, या अकॉर्डिंग टू लाइक डिसेंट्रलाइजेशन किया अगर आपने, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से वर्क को अलोकेट किया जाएगा, राइट। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल एक्टिविटीज़ दोनों होती है, तो दोनों एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट वाइज क्या करना होगा? हमें स्पेसिफाई करना होगा, राइट। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं अगर मैं, तो इंफॉर्मेशन क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है, राइट। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नीड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या होता है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना होती है, और उसके लिए इंफॉर्मेशन भी एक्यूमुलेट करना होती है। कुछ इंफॉर्मेशन कंट्रोलेबल होगी और कुछ इंफॉर्मेशन नॉन कंट्रोलेबल होगी, राइट। Performance reports are prepared to provide information to those will use them। और फाइनली जा कर के जब आप सारे के सारे वर्क को, सबसे पहले आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, फिर उसे क्या किया? स्पेसिफाइड किया,
स्पेसिफाई किया, राइट। स्पेसिफाई करने के बाद क्या किया, उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल, राइट, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर पाते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर्म करते हैं, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज इज ट्यून्ड to its organization structures. It integrates budgeting, reporting techniques, right, dovetails them to organize structure and responsibilities. Sorry. तो ये सारी की सारी प्रोसीजर को क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम ट्यून करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन वेल फॉर्म में रन हो सके और हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग उस रिजल्ट को अचीव कर सकें, फॉर विच पर्पज वी आर डूइंग, राइट। तो हम फर्दर लेक्चर्स में इसके और नेचर के और रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।